Hello everyone, I'm Sarkari, and today we will see the ingredients of the preamble and some questions from the preamble chapter. So yesterday we talked about what is preamble, what are its main features. So today we will study the following things and the characteristics of the preamble. तो पहला जो preamble है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स हमें एज ए सोर्स काम करती है. जो भी उसके अंदर से प्रिंसिपल्स मेंशन है उसका सुप्रीम कोर्ट भी टाइमली यूज करती है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. जो पार्लियामेंट है जब वो लॉ बनाती है तो उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के लॉ बनाती है. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तो हमने देखा कि किस तरीके का इंडियन स्टेट है वो प्रेम्बल से हमें पता लगता है. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटिक्स. व्हाट आर दीज टर्म्स वी आर प्राउड ऑफ इन द फुल डिटेल. ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? टू प्रमोट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी which are also enshrined in the chapter of fundamental rights in the part 3 of the Indian Constitution. Then the date of adoption, that is 26 November 1949, on which 384 members out of 389 finally signed the Constitution draft and made this Constitution as the Constitution of India. Now, these are some prominent personalities who participated in the debate on the preamble. Maulana Hasrat Mohani, we talked about him, who's Maulana Hasrat Mohani. He's a guide of father of nation Mahatma Gandhi, who participated in the 1922 Khilafat movement, and he's the one personality who took Gandhi and who made Gandhi as a new leader of the Khilafat movement at the time 1920s and the non-cooperation movement also in the 1921. Then K.M. Munshi is a professor and he served as a minister in the state of Maharashtra assembly. Then K.V. Kamath, he was a jurist. Purnima Banerjee, Rohini Kumar Chaudhary, and Professor Shubhanlal Saxena, they were the other personalities who participated in the discussion of the preamble. Then K.V. Kamath wanted the preamble to begin with in the name of God. So we did not opt this, the name of God, because we represented that India is a secular country and we cannot explicitly mention the name of God because God is, in the Indian society, God is considered as very sacred, very supreme, and the part of everyone. But still, we do not use the term in the name of God because uh, that will put the constitution beneath the God. But here, the constitution is in the modern side put equal with the religion. Then Shivadar Saxena Pandit Govind Malviya wanted the preamble to begin with expression, by the grace of Supreme Being, Lord of the universe, called by different names of the different peoples of the world. So again, the same interpretation we can use here, that the Constitution Assembly members unanimously adopted the resolution for not using the name of Lord, the name of God, because there was some debate also as to whether the note or the coins of the currency of the India should represent the idol or the images of God. So the same pretext, they were also denied, and that is why we have the Mahatma Gandhi as a father of nation, who is represented on the currency notes and the cash coins, and as well as in the constitution, where we are using the term "we the people of India" rather in the name of God. Then preamble is considered different things by different personalities. Some gave it as a name of horoscope by K.M. Munshi. Then preamble was considered as a dual stick by Pandit Thakur Das Bhargav, and it is the base of constitution give authorities that we have talked earlier. तो प्रियम्बल बात करती है कि पावर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लेगा? पीपल से. दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्स की डेट क्या होगी? एम एंड एस्पिरेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का? ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का? फिलॉसफी क्या है? एंड राइट्स एंड फ्रीडम्स क्या होंगे, जो कि हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर देखते हैं, और जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन फिलॉसफी है. Unity and integrity of the nation signifies that India is a fully sovereign country, and the unity will be maintained at the cost of anything. Unity and integrity of the nation is the responsibility of the central government under Article 355 also, and under Article 1 also, which provides the union government power to break or to make a state, but the union cannot be touched by the state because that is the quasi-federalism feature of the Indian Constitution. Then the dignity of the individual, which is enshrined in the fundamental rights. The feeling of fraternity, which is to promote brotherhood, commonness, and to prevent defragmentation in the society. But yes, there are some issues like son of soil theory. We have then preference over the regionalization, linguism, like the state of southern India criticize the Hindi two language policy,
So these are some concerns as far as the fraternity is concerned, and the communalism is also one of the major forces affecting fraternity. Then equality of status and opportunity, we talked under Article 18 that under Article 14 to 18, equality is promoted by the Constitution, where equality of status, where every person is equally treated in the name of in the front of law, and opportunity in the education, in the employment, everywhere there will be equal level principle in the society. Then the liberty, Article 19 to 22, which talks about various types of liberty which every citizen of India possesses. Then justice, political, economic, social justice, and sovereign, socialist, secular, democratic republic. These are the terms which represent the philosophy of the Constitution. Now there is a question that preamble is whether part of Indian Constitution or not. So for many years, for the many dozen years post-independence, the preamble was not considered as a part of the Constitution. So we will talk about this in detail in the continuation of the Supreme Court cases. The very first case was of Berubari Union case 1967. Here the Supreme Court laid that the preamble is very important part of the Constitution. Number of times Supreme Court and the High Court have to use the preamble for the interpretation of the Constitution, where the Constitution is ambiguous, silent, and do not speak much. But still, preamble cannot be considered as a part of the Constitution. So in the Berubari case, the Supreme Court said that preamble is not part of the Constitution. But in the case of Bharati case 1973, Supreme Court declared that preamble helps the Supreme Court in deciding the basic structure doctrine, and on the basis of that, it becomes the part of the Indian Constitution, though it is laid in the later part, the later course of the Constitution making process, but still it is a part of the Constitution. Then the third case comes, that is 1991 LIS India case, and before that, even in the Minerva Mill case 1980, Supreme Court said that yes, the preamble is a part of the Constitution. Then in the 1991 LIS India case, Supreme Court again reiterated that it is a part of the Constitution. And then in the Bombay case 1994, Supreme Court said that according to Article 356, that talks about the emergency, that talks with secularism also, and preamble का use उसमें होता है to determine the religious freedom, which are the basic structure of the Constitution. In simple भाषा में जो fundamental rights हैं, religious freedoms के बारे में जो talk करते हैं Article 25 to 30, that has some sort of association with the preamble. So if fundamental rights are the basic structure, so preamble is also the basic structure of the Indian Constitution. Now there are some questions. First question is, what is the significance of a preamble to a constitution? Bring out the प्रवेश philosophy of the yes. एक बार ना मतलब मुझे फिर से समझना है, मतलब प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक बेसिक बता दे, मतलब वेरी वेरी केस है उसके बाद, मतलब वो थोड़ा सा समझ में नहीं है, एक बार बस तो मैं हाँ बेसिक में। तो हाँ सबसे पहले जो है यहाँ से बेरूबारी केस 1967 में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, ये क्वेश्चन उठता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डाली भी गई है, सबसे पहले इसको डाला गया है, सबसे बाद में बेसिक से आई है, और बहुत हेल्प करती है सुप्रीम कोर्ट की पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने में। बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन चुप है, वेयर द लॉ इज साइलेंट, वहां पर भी प्रीएम्बल की सहायता से कानून बनाने में सुप्रीम कोर्ट को हेल्प मिलती है। लेकिन फिर भी हम इसको पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस प्रिटेक्स्ट के ऊपर, इस कंसर्न के ऊपर। लेकिन केशवानंद भारती केस जब आता है 1973 के अंदर, जब बात होती है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर होंगे, जुडिशियल रिव्यू जो पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर होगी, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो जस्टिस की बात हो रही है, लिबर्टी की बात हो रही है, ये सारी की सारी चीजें तो प्रीएम्बल में भी है, तो इसी वजह से प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाएगा। उसके बाद उसके बाद फिर LIS इंडिया केस में भी यही बात होती है 1991 में कि प्रीएम्बल पार्ट है, फिर जो है मिनर्वा मिल में भी 1980 में यही बात होती है कि पार्ट है, और आखिरी में जाकर जो बोम्बई केस है 1994, वहां पर यही कहा जाता है कि जब इमरजेंसी लगती है तो सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, और वहां पर इंपॉर्टेंस हो जाती है फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन की, जो कि आर्टिकल 25 to 30 में है। तो अगर इमरजेंसी के टाइम पे आप रिलीजियस फ्रीडम को कर्व नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप प्रीएम्बल को भी हम यही मानेंगे कि वो भी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है।
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, bring out the philosophy of the Indian polity as enshrined in the preamble of Indian Constitution. So now we continue. Significance of the preamble to the Constitution. Preamble is a guiding stone on which the founding forefathers talked about what India should be, what India should look like in next 50 years. इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए पूरा स्टेट का, तो वो डायरेक्शन देता है, सिग्निफिकेंस देता है प्रियम्बल को। और एक हर एक नागरिक सिटीजन को एक आइडिया मिलता है कि कैसा एक इंडियन स्टेट होना चाहिए। वो एक ब्रीफ में दिया जाता है, जो कंटेंट का ब्रीफ में इंडेक्स है एक तरह से ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का। significance, it is guiding light for the Supreme Court and High Court also for the interpretation of the Constitution and also the laws। ये पहला हो जाएगा। प्रवेश, आपको कुछ? ठीक है, तो इसमें हमें इंडिया ऐसा नहीं लेना, इसमें हमें सिंपल बताना है कि प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल प्रोवाइड्स द राइट्स वेयर द लॉ रिमेन साइलेंट। प्रीएम्बल प्रोवाइड्स the interpretation of the whole constitution, and preamble is a horoscope through which every organ of the government, whether it is judiciary, legislature or the panchayati raj of the local government, takes their direction. ठीक है। दूसरा बताओ, Bring out the philosophy of the Indian polity as enshrined in the preamble of the Indian Constitution। philosophy of the Indian polity, तो philosophy of the Indian polity तो इस पे बात करेंगे ना, आई थिंक इट इज लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक, उसके हिसाब से बात करेंगे फिलोसफी इंडियन पॉलिटी। तो ठीक है, ब्रिंग आउट कर देंगे, मतलब बता देंगे एक तरह से, डिस्क्राइब कर। थोड़ा इस तरीके से बताएंगे, जब फिलोसफी है इंडियन पॉलिटी, वो प्रियम्बल के अंदर किस तरीके से इंश्राइन हुई है, ट्रेडिशनलिज्म और मॉडर्निटी दोनों को लेकर के चला गया है, जिसमें कि हम बात करते हैं जस्टिस की भी और लिबर्टी की भी। उसके बाद हम मेरिटोरियस सिस्टम और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हम बात करते हैं फिलोसफी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूसिव और इगैलिटेरियनिज्म को प्रमोट करती है, वुमेन सेंट्रिक है। उसके बाद चाइल्ड सेंट्रिक है, अब डिसेबल सेंट्रिक है, इंक्लूसिविटी की बात करती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलरिज्म, जो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, उसके नोशन को प्रमोट करती है। तो इस ये सारी चीजें डाल कंटिन्यू। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, प्रीएम्बल, या पढ़ो उसके बाद। Next question is talking about the preamble to the constitution is a key to open the minds of the makers। तो constitutional maker का बात हो रहा है, तो key to open the mind। तो mind उस समय जो the experience that they gained during the national movement, they were including from the GOA Act 1935 या फिर बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशन उठाया गया। और उसके बाद जो उनका दिमाग में आया कि वी हैव टू मेक गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑन द सोशलिस्ट पैटर्न, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लिबर्टी, बाकी सब लाया गया। तो माइंड एक तरह से माइंड ऑफ मेकर, आपने बताया पहला वाला में फिलोसफी को बोल देंगे कि ट्रेडिशनलिज्म भी है और साइंटिफिक रैशनलिज्म को प्रमोट करने की बात हुआ इसमें। उसके बाद फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू सोसाइटी चेंजेस जो भी आएगा वो भी इनकॉर्पोरेट हुआ जा सकता है इसके अंदर में। तो आई थिंक ओपन द माइंड, इसी की बात होने वाली। प्रवेश, आप कंटिन्यू। इसमें यही बोलेंगे, और ये है कि प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक हम उसका ताला माने, तो प्रीएम्बल उसका एक चाबी है। आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिखा, वो आपको खाली प्रीएम्बल पढ़ के पता लग जाता है। जो कॉलोनियलिज्म का जो इम्पैक्ट उन्होंने झेला और उस झेल करके जो वो बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, वो आपको प्रीएम्बल से पता लग जाती है। वो जो बात कर रहे थे कि सोसाइटी के अंदर हिस्टोरिकल जस्टिस इनजस्टिस होता है और उसको इंप्रूव करने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत है, वो आपको प्रीएम्बल से पता लग जाती है। तो दिस इज व्हाई द प्रीएम्बल इज कंसीडर्ड एज द की टू ओपन द लॉक फॉर द माइंड ऑफ द मेकर। ट्रू। Then third question is, why is the preamble to the Indian Constitution considered a unique feature? What are its main objective? यूनिक फीचर क्या है? हाँ, तो इसमें मतलब ये ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमने पहले सबसे पहला क्वेश्चन देखा, ये वही बात कर रहा है कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक कैसे है। तो यूनिक इसी तरीके से है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजें इंटेंजिबल फॉर्म के अंदर लिखी गई हैं, वो टेंजिबल फॉर्म के अंदर प्रीएम्बल के अंदर आ गई है। आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं तो वहां पर पूरा इंटेग्रिटी की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, क्वासी फेडरलिज्म जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं दिखेगा, वो प्रीएम्बल के अंदर आपको दिख जाता है। जब बात करते हैं आर्टिकल 1 दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया, तो यूनियनिज्म की बात जो है वो प्रीएम्बल के अंदर आपको दिख जाती है। ओके, तो मेन ऑब्जेक्टिव बता दी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन मेजर कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इनकॉर्पोरेटेड इन इट्स प्रीएम्बल।
तो मेजर कमिटमेंट वही कि इक्विटी होना चाहिए, इक्वालिटी फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट, थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ओवरऑल सब कमिटमेंट, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, रिपब्लिक रिपब्लिक, सॉवरेंटी, सब एक कमिटमेंट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल। तो इसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं फिर। And I think this हम्म, and this question is not of preamble. This question is of the RTI Act. So we will take it in later part तो आरटीआई में because कनेक्ट बस ये कर सकते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और थॉट है, वो इसमें आ जाए, आरटीआई एक्ट में आ जाए कि जो लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द क्वेश्चनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो आरटीआई एक्ट इसमें ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी, ऑब्जेक्टिविटी होना जरूरी, इसी कारण। अब वो जो बोल तो रहा उसे हूँ कि कनेक्ट कर ये सकते जो हैं, हाँ डिटेल में लेंगे, दैट सीआईसी और दैट वो उसके बाद। ट्रांसपेरेंसी चार्टर और सोशल ऑडिट का एक टूल है। तो ठीक। तो यहाँ पर यही बात हुई है कि केसकर एंड भारतीय केस के अंदर ये क्वेश्चन सेटल हुआ था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगी। और एलाइड इंडिया के जब तो उसमें भी यही बात हुई कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जो कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं कि बेरूबेरी केस में पहली बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। उसके बाद यस। जो भी केस है सब में अप्रूव प्रूफ किया गया, प्रूफ नहीं, सब में ऐसा बोला गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो लीगली अप्लाई नहीं होगा। वो एक डायरेक्शन बस देगा कि एक तरह का एक इंडिकेशन देगा, डायरेक्शन देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चले, है ना। वो लीगली अप्लीकेबल है क्या? प्रियम्बल नहीं है। हाँ, लीगली जो हाँ, प्रियम्बल है वो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। इन्फोर्सिबल नहीं, लेकिन वो डायरेक्शन देता है सर। डायरेक्शन देता है और ये है कि प्रियम्बल जो है अगर उसको हम दूसरे पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पढ़ते हैं देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज लीगली एनफोर्सेबल। ठीक क्योंकि अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं और है। प्रियम्बल को उसके साथ एसोसिएट करके पढ़ते हैं तो देन विल बी लीगली एनफोर्सेबल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल। आर द सॉवरेन डिफेंडेबल। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इंडिया में, अगर बोला जाए तो। हाँ, तो सॉवरेन, डिस्कस। हाँ, बता दीजिए। तो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो डेमोक्रेटिक इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, और उसी से पावर डिराइव होता है पीपल से। तो डेमोक्रेटिक हो गया। सॉवरेन का बात करें कि इंडिया जो कंट्री है, इट इज द स्टेट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एंड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी फॉरेन इंट्रूजन और फॉरेन इंटरफेरेंस। तो ये सॉवरेन का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें कि आप डिसीजन मेकिंग खुद नहीं कर नहीं, सकते हैं। हम तो ये नहीं कह सकते कि फ्री फ्रॉम फॉरेन इंट्रूजन। हम ये बोल सकते हैं कि सोवरेनिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो हमारी कंट्री है उसके पास फुल राइट है किसी बाहर की कंट्री के ऊपर अटैक करना, किसी बाहर की कंट्री की टेरिटरी को अपने अंदर लेना, अपनी कंट्री पर अगर कोई अटैक होता है तो उसका जवाब देना। और सोवरेनिटी का मतलब ये भी है कि हम अपने इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बिना किसी के इंटरफेरेंस के बना सकते हैं और अपने इंटरनल जो मैटर्स है उसमें सेकंड या थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस को मना कर सकते हैं। दिस इज सिंपल ठीक। मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी। ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर द डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। तो बताइए उसे। ये बोल सकते हैं इट इज डिफेंडेबल, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट है वो आज भी है और उसको प्रमोट किया जाता है, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। ये धीरे धीरे बढ़ते, पेनिट्रेशन बढ़ते जा रहा है, राइट फ्रॉम बिगनिंग टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं, डिफेंडेबल। दूसरा, सॉवरेनिटी भी डिफेंडेबल है। ईच कंट्री के पास अपना राइट्स है सॉवरेनिटी करने का इन यूएन। और उसके बाद फिर इंडिया के कंटेक्स में देखा जाए तो सिक्किम भी इंटीग्रेट इंडिया में हुआ है। उसके बाद फिर इंडिया ने अपहोल्ड किया ड्यूरिंग 1971 में जब कि, तो बोल सकते हैं। आप बोलो प्रोस, हाँ, डिफेंडेबल मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली? तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि नॉट ओनली दे आर डिफेंडेबल बट इंडिया हैज शोकेस्ड दैट these principles um, India has showcased these principles in its full effectiveness, which are motivating other countries also, like Nepal, Bhutan, when Nepal, Bhutan, and Philippines, when they are also defending their sovereignty amid the Chinese expansionism. ठीक, उसके बाद हम डिफेंडेबल। हाँ, तो सोवरेनिटी में बात कर देंगे कि किस तरीके से डिपेंडेबल है। इंडिया तो अपना करता ही है। दूसरा जो है हमारे यहाँ वियना कन्वेंशन है जो इस चीज की बात करती है। उसके बाद जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इंडिया ने शोकेस किया कि यूनिटी इन डाइवर्स इतनी डाइवर्स कंट्री होने के बाद भी जो डेमोक्रेसी, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है वो इंडिया को कहा जाता है। तो हमने ना केवल उसको डिफेंड करके दिखाया बल्कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जब हमने दिया इतनी पॉपुलेशन को जिसमें इलिटरेसी इतनी हाई लेवल पर थी, हमने दिखाया कि किस तरीके से इसको ना केवल डिफेंड किया जा सकता है बल्कि
इंडियन जो पाथ है ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ रिपब्लिकनिज्म, उसकी तरफ हम बाकी जो कंट्रीज है हम उनको भी प्रमोट करते हैं, अपनी वैल्यू दिखा सकते हैं। ठीक है। तो सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी की हमने बात की कि सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी दो लिटरली आर डिफरेंट कंसेप्ट, बट इंडिया हैज अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, जो बात करता है मिक्स फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, जिसमें सोशलिस्ट पैटर्न पर सोसाइटी चलेगी और कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी चलेगी। तो दोनों एक दूसरे को हार्मोनियसली कोऑपरेट करेंगे, और इस तरीके से मिक्स फॉर्म ऑफ इकोनॉमी का हमने यहाँ पे इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटेशन किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोशलिज्म, जो कि बात करता है सोशलिज्म की, इक्वालिटेरियनिज्म की, इक्वालिटी और इक्विटी की। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी, कौशिक? इक्वालिटी जो हम लोग बात करते हैं कि सबको इक्वल ट्रीट करना, लेकिन ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे प्रिविलेजेस है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है सबके लिए डिफरेंट है। तो इक्विटी को प्रमोट करने के लिए आपको जो वेलनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको थोड़ा सा पुश करना चाहिए। तो फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कॉन्सेप्ट इसी में आता है, इक्विटी को प्रमोट करने के लिए। और फिर ठीक है, तो रिजर्वेशन होगी। हाँ, जैसे रिजर्वेशन हो गया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज एट द वर्क प्लेस, जो है आपकी विशाखा गाइडलाइंस हो गई वुमेन के लिए। उसके बाद जो आपका स्पेशल सीट्स, रिजर्व सीट्स होती हैं अकोमोडेशन में, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, फॉर द वुमेन, फॉर द पीडब्ल्यूडी, फॉर द ओल्डर पीपल, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द इक्विटी बेस्ड सिस्टम, इक्विटी बेस्ड हम्म। सोसाइटी। एंड हम्म। इक्विटी का मतलब ये है कि आपको जब एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो आपका जो भी मेरिट होगी आपको मेरिटोरियस के बिहाफ पे प्रमोट किया जाएगा, दैट इज एग्जांपल ऑफ इक्वालिटी। नो डिस्क्रिमिनेशन और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जिसमें बात की जा रही है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि रिजर्वेशन दी जा रही है तो वो डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर बात हो रही है नो डिस्क्रिमिनेशन और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, बट इट इज टॉकिंग अबाउट द इक्वल। अगर आप सेम एज ग्रुप में हैं, अगर आपके सेम मार्क्स हैं, तो वो आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता है। लेकिन आपके कुछ से जो है वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस रहती आई हैं, और आप कह रहे हो कि हमें मेरिटोरी सिस्टम चाहिए, तो वो अलाउ नहीं किया जा सकता, दैट इज नॉट फिजिबल। बट यस, after a certain point of time, when the level playing field will come into society, that discrimination will also be null and void. Then equal right to access to all institutions, democracy is value, democratization of institutions. तो बताइए उसमें democratization of institutions को कैसे बताएंगे आप? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन को कैसे बचाएंगे? तो कैसे बताएंगे, कैसे क्या बताएंगे? है ये मतलब? हाँ, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन मींस सिटीजन पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए, और सिटीजन्स के पास राइट होना चाहिए फॉर डिड्यूसिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो होते हैं पावर में, फॉर एग्जाम्पल आरटीआई। तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, इसका एस्पेक्ट हो गया कि, और फिर सिटीजन सेंट्रिक ही पूरा ग्रीवांस रेडरेशन मैकेनिज्म है कि आप क्वेश्चन पूछे, और आप सोशल ऑडिटिंग भी इसका पार्ट हो गया। पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए सिटीजन का, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए लॉज में, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए रूल्स में, और फिर ग्रीवांस से रिडरेशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो वही डेमोक्रेटाइजेशन है। और ठीक है। जस्टिस डिलीवरी तो करना स्पीड होना चाहिए। तो हाँ, तो हम बात कर सकते हैं जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, दैट आर डेमोक्रेटाइजिंग द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के अंदर जो वुमेन रिजर्वेशन की बात हो रही है, दैट इज डेमोक्रेटाइजिंग द पार्लियामेंटेरियन एंड द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। जब हम बात कर रहे हैं कि पंचायती राज जो है उसके अंदर मोर पार्टिसिपेशन होना चाहिए वुमेन का, पति पंचायत खत्म होना चाहिए, तब हम बात करते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस पर। जब हम बात करते हैं कि जो जिला अधिकारी होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है और जो एसपी होता है, उसको संडे को लोक अदालत करनी चाहिए, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की फेसलेस अपील का और फेसलेस फाइलिंग ऑफ टैक्स का, तो हम बात करते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। जब हम बात करते हैं कि फाइनेंस कमीशन जो है उसका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है होना चाहिए, जो कैग है उसकी ऑडिट को टाइमली कंसीडर करना चाहिए, और कैग को एक्विचेकर की पावर के साथ साथ कंट्रोलर की पावर भी देनी चाहिए, तब हम बात करते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। So ठीक now है। we can move forward. Democratic social order that we have saw. So the question is, the word socialist in the preamble to our constitution required to be defined. Comment. बताइए उसको। Socialist in our constitution requires to be defined. So I will say that it is not the case, because Indian form of socialism is different from the Western democratic form of socialism. It is Nehruvian socialism. It is a democratic socialism in which India promotes both equitable economic redistribution of taxes, welfareism, and at the same time it promotes free market capitalism. तो तो से डिफाइन की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। तो कमेंट में मैं यही बोलूँ, आप बोलो ऐड कर दो। ठीक है, पहला
मैं बोलूंगा कि जो preamble है, that is the introduction. So defining every feature of the preamble is not practically feasible. Number one. As far as the socialism definition is concerned, so it is already defined in the directive principle of state policy when we talk about the socialistic principles, liberal principles, and Gandhian principles. Then number third, we have some socialist principles in the democracy when we talk about the reservations in the fundamental right chapter. Then the some other provisions, and according to second ARC and the National Commission to Review the Constitution, the word socialist in the Indian Constitution is used itself in the form of democratic socialism since the 1991 when we adopted the LPG reform. So as far as the current constitution is concerned, there is no need to define, and the socialism is already is existent in the main codes of the Constitution of India. Mansi, you want to add something? Divya, Karuna? मैं बस ये बोलूंगी सोशलिज्म को डिफाइन करना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि the demands of the time keeps on changing, so it is not tangibly possible to define the word socialist. Yes, okay, thank you, Mansi. And one term, Oshik, for you especially, I'm speaking here, that socialism is considered as a hat which is worn by everyone, but has lost its shape. So this comment, though it is a part of political science optional, but we can use it here, that socialism is so big theory, so big philosophy, so big ideology, that defining socialism is not practically, as just Mansi said. Socialism is like a vast philosophy which cannot be defined in one form. ठीक है. Now the question is, the use of word socialist in the Indian Constitution has become redundant in the context of liberalization of economy. So again, we are talking about the 1991 reform post draft. ऐसा नहीं बोल सकते. बताइए रिडंडेंट नहीं है कि सोशलिस्ट का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गया, सोशलिस्ट का पैटर्न चेंज हो गया 1991 के बाद से. इंडिया कभी भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे हटा नहीं, तो रिडंडेंट नहीं हुआ. क्योंकि अभी देखा जाए तो ज़्यादा पीएम आवास एक तरह से सोशलिस्ट पैटर्न पे चल रहा है, पीएमजी हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, सब तो सोशलिस्ट पैटर्न पे चल रहा है. तो ऐसा बोल नहीं सकते. बोल सकते कि जो तरीका चेंज हो गया, डीबीटी का तरीका चेंज हो गया, डिजिटाइजेशन के कारण चेंज हो गया, तरीका ही चेंज हो गया ओवरऑल. तो ये मेरे हिसाब से रहेगा. एग्जाम्पल लिख के लिख दें, कमेंट कर दें. आप बता प्रवेश. I would add कि again कि India is not a pure socialist country. We follow the model of mixed economy. तो elements of capitalism and socialism, both of them are mixed and they're visible in the economy. और जो examples औशक ने बोले उसके through we can substantiate this. तो इसमें मैं बात करूंगा जो कि हमारे यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सोशलिज्म वर्ड है, उसका जो प्रिटेक्स्ट है वो हम देखते हैं आबादी सेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और कराची सेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहाँ पर बात होती है कि जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होगा इंडिया के अंदर वो मिक्स कॉमर्स इकोनॉमी होगा. तो 1991 के अंदर जो रिफॉर्म्स हमने एलपीजी के अंदर देखे हैं, दैट इज नॉट मेकिंग सोशलिज्म सम रिडंडेंट, रादर दैट इज मेकिंग द लिबरलाइजेशन और दैट इज मेकिंग द development pattern more liberal but not affecting the principle of socialism. तो आपने बात की कि 1991 के बाद ही हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किया पंचायती राज का, म्युनिसिपैलिटीज का, उसके बाद हमने जो राइट टू एजुकेशन में हम बात करते हैं जिसमें हमने सोशलिज्म प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया है. उसके बाद हम 2006 के अंदर से पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसकी हम बात करते हैं. तो और भी एग्जांपल आपने दिया आज के कॉन्टेक्स्ट में कि पीएमजे की बात की, पीएम आवास की बात की, जहां पर सोशलिज्म प्रिंसिपल को प्रमोट किया जाता है. तो दिस इज हाउ वी विल कंक्लूड दिस आंसर. ओशिक. यस. यहाँ पे हम एक और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं. जैसे हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो उसमें भी विद इन कैपिटलिज्म ऑल्सो सोशलिस्ट एलिमेंट्स दिखते हैं. वी टॉक अबाउट लेबर राइट्स, लेबर प्रोटेक्शन, वी टॉक अबाउट सेफ वर्किंग कंडीशंस और जो 4 लेबर कोड्स आए हैं. So that reflects that it is not redundant. Yes. Secular we have talked, and the idea of Indian secularism we have also talked, that is the equal protection of religion and equal distance from all religion, and this is the exact definition of Indian form of secularism. And then what are the progressive features of Indian secularism? Irreligious state, equality and tolerance, absolute right to conscience, reasonable restrictions, right not to pay tax,
prohibition on discrimination on preferential treatment and right to property is a fundamental right. But I think there are three features which are currently not available. The last one and the first one, because the state is, you cannot completely say that state is irreligious. State is irreligious, we should say, and right to property is not a fundamental right in the present context. 442nd Amendment. तो यहाँ पर वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के फीचर्स लिखे हुए तो आप पढ़ सकते हैं ना. So now the question is, how do the Indian debates on secularism differ from the debates in the West? So आप कुछ बताएं. ये डिस्कस हमेशा करते हैं प्रवेश कि डिफरेंस कैसे है इंडियन सेक्युलरिज्म. वेस्ट में तो डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन है. इंडिया में कि आपने बताया था स्टार्टिंग में कि इट इज म्यूचुअल इक्वी डिस्टेंट भी है, और लेकिन आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं. इसमें आर्टिकल 25 से 29 के बीच माइनॉरिटी के पास राइट्स है, एक्स्ट्रा राइट्स है एज कम्पेयर टू मेजोरिटी, कि आपके पास राइट टू ओन द इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन, रन द इंस्टीट्यूशन, और आपके पास टैक्स बेनिफिट भी मिलता है जो वेस्टर्न में नहीं है. तो इसमें थोड़ा कंटेक्स्ट देता हूँ. जो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डिबेट्स है इंडियन सेक्युलर, वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म पे, उनका जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि वहां पर टू स्वर्ड्स ऑफ पावर है. यानी किंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहा है और चर्च जो है वो रिलीजन को संभाल रहा है. लेकिन दोनों ही एक दूसरे की पावर्स के अंदर इंटरवीन करते हैं, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है उसके अंदर ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कौन जो है वो सुप्रीम है. तो उसकी वजह से क्या होता है, जब सेंट्रल पावर या सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो ही कंफ्यूज होती है कि पावर मेरी चलेगी किसी और की, तो सोसाइटी में करप्शन होता है, सोसाइटी में लैक ऑफ रैशनलाइजेशन होता है, लैक ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट होती है. तो तब वेस्टर्न सोसाइटी से हम अंदर बात देखते हैं कि मर्सेंटाइलिज्म और कैपिटलिज्म की एक वेव आती है, जहां पर जो कैपिटलिस्ट सेक्शन है वो फ्यूडलिज्म को खत्म करने के लिए बात करता है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की हमें जरूरत है जो हमें कानून प्रोवाइड करा सके, जो हमारा प्रॉपर्टी, जो हमारी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि रिलीजन वो काम नहीं कर सकता है. तो रिलीजन ने सपोर्ट किया फ्यूडलिज्म को, और किंग या फिर हम बोल सकते हैं जो सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेस्टर्न सोसाइटी में थी उसने प्रमोट किया कैपिटलिज्म को. और क्यों किया? क्योंकि सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर हम फ्यूडलिज्म को ही परपिचुएट करेंगे तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर हम कैपिटलिज्म फॉर्म ऑफ सोसाइटी को प्रमोट करेंगे तो उससे हमारे को टैक्सेशन मिलेगा, उससे हमारे को वेल्थ मिलेगी, उससे हमारी सोसाइटी प्रोग्रेशन पे जाएगी, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, उससे जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंड होगी. तो वहां पर जो डिबेट थी वो ये थी कि चर्च और जो स्टेट है दोनों का कंप्लीट सेपरेशन होकर ही वेस्टर्न सोसाइटीज जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगी. लेकिन इंडिया के अंदर जो डिबेट है ऑन इंडियन सेक्युलरिज्म, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई दो भागों में या फिर दो सेक्शंस में जो है सेक्युलरिज्म नहीं बटा हुआ था. रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वाज इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर. हर पॉलिटिशियन जो है वो रिलीजन मानता है, हर रिलीजन जो है वो हर पॉलिटिशियन को उतना ही रिस्पेक्ट, उतनी डिग्निटी के साथ देखते हैं. आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जो कि कंसीडर किया जाता है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर भी केसों ने भारतीय केस के अंदर जो जजेस बैठे हैं उन्होंने टीके लगाए हुए, पगड़ियां बांधी हुई है. तो उन्होंने ये ओपाइन भी किया है कि दीज सेक्युलर फीचर्स, these are considered as secular features. So what kind of secular? Indian form of secularism features when we are Yes, having Parvesh. heaven on our head. तो यहाँ पर जो डिबेट हुई वो ये हुई कि दोनों को किस तरीके से हार्मोनियसली लेकर के चला जाएगा. वहां पर डिबेट थी कि दोनों को अलग कैसे किया जाए, यहाँ पर डिबेट थी कि दोनों को एक साथ लाकर सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए. स्टेट जो है वो सेंट्रल की हेल्प करेगा, सेंटर जो है वो स्टेट की हेल्प करेगा. इसी वजह से यहाँ की डिबेट और वहाँ की डिबेट में फर्क है. तो वहां पर जो सेक्युलरिज्म आया, दैट इज कंसिडर्ड एज फुल फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, बट इंडियन सेक्युलरिज्म इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म. So if any question anyone has, so he may rise, otherwise we can move forward. Okay, Ashik, now you continue with the second question. Give your views on right to freedom. ये जब कर लें राइट वाले तब ले लेंगे प्रवेश. तो जब राइट टू रिलीजन आएगा ना, जब ठीक, ठीक. 25-29 Democracy we have talked about, and in short, what are the features of direct democracy? In direct democracy, you have ये four ले kinds लेंगे एक बार of. प्रवेश, डिटेल में ले लेंगे फिर. Okay. Okay, so thank you so much, and we'll be meeting tomorrow on the democracy and the aftermath consequences of it, and some more topics. Thank you so much, and keep working on the